Welcome, my dear friends. Today I am going to discuss Chapter 11 Web Services. So, what are web services? Those services which are offered by the internet are those services which we avail with the help of internet are called web services. So, in this chapter we are going to study about the learning objective, that is the social networking service, news groups, blog, online chatting, video conferencing, e-learning, e-reservation, e-shopping and e-banking. So as you all know that the services which we use in the form of social networking sites, online chatting, video conferencing, e-learning, e-reservation, e-shopping, e-banking are all offered by the internet. So internet play a very important role in our life. The internet is a global resource of knowledge and it is very important to all of the people in the world. So its growth and impact are largely due to its incorporation of number of deeply powerful features and services that continue to accelerate its success. Means अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आजकल सारी सर्विसेज हमें इंटरनेट पे मिलती हैं. एज यू सी इन योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो न्यूज ग्रुप्स हो, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज हो, ऑनलाइन चैटिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ई लर्निंग हो, ई रिजर्वेशन हो, ई शॉपिंग हो, ई बैंकिंग हो, यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हमें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे. तो जो फर्स्ट हमारी सर्विस आती है इंटरनेट पे वो आती है सोशल नेटवर्किंग सर्विस. तो जैसा कि हमें पता है, वी ऑल नो दैट वी आर यूजिंग डिफरेंट वेबसाइट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग. फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन. सो इट अलाउज यूजर्स टू शेयर देयर आइडियाज, देयर व्यूज, देयर फोटोज एंड वीडियोज. हम इस पे अपने फोटो, वीडियो, अपने आइडियाज, कमेंट्स, लाइक, अनलाइक, यानी हम बहुत सारी चीजें हम शेयर करते हैं इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर. तो सोशल नेटवर्किंग सर्विस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो डेफिनेशन क्या हुई सोशल नेटवर्किंग सर्विस की? इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच पीपल यूज टू बिल्ड सोशल नेटवर्क्स और सोशल रिलेशंस. जो हम अपना एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं विद आवर कोलीग्स, with our friends, with our relatives. So peoples or groups on these networks have same personal or career interest or activities, backgrounds or real life connections. Websites are commonly used for this purpose. So these social sites are called social networking sites. इन sites पर हम उन ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट होते हैं जो कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या फिर हमारे सेम माइंड के होते हैं, या फिर कॉमन इंटरेस्ट दोनों के होते हैं. सपोज जैसे अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके ग्रुप के मेंबर्स हमारे फ्रेंड्स हैं, मींस हमारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो उसमें उनके वो ग्रुप. तो एक तरीके से सोशल नेटवर्क भी एक तरीके से एक ग्रुप है जो कि हम ऑनलाइन क्रिएट करते हैं और उनसे हम अपने आइडियाज और अपने व्यूज शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, these are all the examples of the social networking sites. And next in this web service is news groups. So news group, what is a news group? News group is an online discussion forum accessible through internet. यानी कि when you discuss a topic, a specific topic indicated in the news group name, the name which you have in the news group is belongs to a particular topic. The topic belongs to any field, that is of politics, चाहे वो पॉलिटिक्स का टॉपिक हो, चाहे स्पोर्ट्स का टॉपिक हो, चाहे म्यूजिक से रिलेटेड कोई टॉपिक हो. मीन्स एनी टॉपिक्स you want to discuss in your group online is known as the news group. So
news groups may be either moderated or unmoderated. So it is a great difference that news groups are of two types, that is the moderated and unmoderated. So in a moderated news group, a moderator means one who posts the discussions on the news group. So in a moderated news group, a moderator must approve posts in order for them to become part of the discussion. In an unmoderated group, everything posted is included in the discussion. तो moderated group में वही पोस्ट न्यूज ग्रुप में इंटर होती हैं जिसको मॉडरेटर अलाउ करता है. मींस सारी पोस्ट को नहीं देख सकता कोई, हम वही पोस्ट देख सकते हैं जिसको यूजर अलाउ करता है. And in an unmoderated group, everything posted is included in the discussion. और unmoderated group में सारी पोस्ट इंक्लूड की जाती हैं डिस्कशन की. और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूज ग्रुप इज लाइक अ कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड. किसी भी एक कम्युनिटी का, मीन्स जैसे जो हमारी कम्युनिटी है यानी हमारी जो एक ग्रुप है उसका ये बुलेटिन बोर्ड है. जैसे समाचार आता है, दैट इज द बुलेटिन बोर्ड. और एक ग्रुप से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस होते हैं, जैसे किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ग्रुप है, सपोज स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ग्रुप है, या फिर म्यूजिक से रिलेटेड कोई ग्रुप है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ग्रुप है, तो इनसे रिलेटेड जो भी मैसेजेस होते हैं दैट आर कॉल्ड दी थ्रेड्स. एंड फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूज ग्रुप्स आर alt.tennis, alt.astrology. Okay, these are all the examples of the news groups. Next service. Now see how news group works. So all of you see this diagram. Your message composed on this computer. This is your computer, and you post a message, and in this news group, this is the news group. That is the online site or the news group. And these three computers, other people see your message posted in the news group. So in this way your news group works. Okay. Next is the blog. So blog is a web service used to create an online personal जनरल और डायरी. जैसे हम एक डायरी, अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, दैट इज द डायरी ऑन द पेज. बट यू कैन ऑल्सो मेंटेन योर पर्सनल डायरी ऑनलाइन. सो ए ब्लॉग इज अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जनरल और डायरी. यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, योर आइडियाज, योर पैशंस, योर थॉट्स इन दिस डायरी. सो ए ब्लॉग इज अ प्लेस to share your thoughts and your passions, your ideas. So blog is a short form for the word weblog. This is this weblog. So in short, we call the weblog as blog, and the two words are used interchangeably. कभी हम blog भी कह देते हैं और कभी हम weblog भी कह देते हैं. So it allows you to write an online diary on a website. एक बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसपे हम अपनी ऑनलाइन डायरी पोस्ट कर सकते हैं और अपने बारे में हम, या किसी टॉपिक के बारे में हम कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, अपने व्यूज हम एंटर कर सकते हैं. एंड इट इज डिस्प्लेड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द साइट. और जो वेबसाइट का फ्रंट पेज है उस पर ये दिखाई देता है. एंड सम ऑफ द पॉपुलर ब्लॉगिंग साइट्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आर द blogger.com, wordpress.com, www.blogs.com or blog.twitter.com. And one more fact bit is that a blogger is a person who creates a blog. In blogging websites पर जो person post करता है entries को, that is called a blogger, or the person who creates a blog is called a blogger. So now the types of blog. So there are three types of blog. First is personal blog.
So this type of blog refers to a blog developed by a user for personal use. It means you create your own personal diary, your own personal blog, and it includes blogs about personal topics, means which type of music you like, where you want to travel, what is about your family, what you think about your health, about politics, means your personal views. Okay, so you write your personal views in this personal blog. Next is the business and professional blog. So this type of blog refers to a blog developed to generate business. यहाँ पर हम इस तरह के ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं, मींस हम अपने कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर को फोकस करके किसी प्रोडक्ट को या किसी हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए. दैट इज कॉल्ड द बिजनेस एंड प्रोफेशनल ब्लॉग. थर्ड इज द genre blog. This type of blog refers to a blog that contains information, articles and discussions related to a particular subject, such as music blog, fashion blog and political blog. ये इस टाइप का ब्लॉग होता है. जो थर्ड टाइप का ब्लॉग है उसमें हम एक कॉमन टॉपिक लेते हैं, जैसे म्यूजिक से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और उसके बारे में हम अपने व्यूज, अपने कंटेंट, आर्टिकल, इंफॉर्मेशन या कोई डिस्कशन है वो हम डालते हैं इस ब्लॉग में. दैट इज कॉल्ड द जनरल ब्लॉग. नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ द ब्लॉग. सो इन फीचर्स ऑफ द ब्लॉग देयर आर टू फोल्डर्स. फर्स्ट इज द आर्काइव फोल्डर एंड सेकेंड इज द कमेंट्स फोल्डर. सो आर्काइव्स, इट इज अ फोल्डर दैट स्टोर्स ऑल द प्रीवियस पोस्ट और एंट्रीज. जो भी पोस्ट एंट्रीज हमने पहले पोस्ट की थी, आज से पहले, करंट पोस्ट से पहले, दैट इज सेव इन द आर्काइव फोल्डर. ओके, एंड इन कमेंट फोल्डर इट इज यूज टू पोस्ट द फीडबैक ऑन ए ब्लॉग. मींस आपने कोई ब्लॉग क्रिएट किया, उस पर अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है, दैट विल बी सेव्ड इन द कमेंट्स फोल्डर. यू कैन सी योर कमेंट्स on your blog in the comments folder. Next topic is the online chatting. It is all of you know about the online chatting. So the term online chatting refers to the communication over internet. जब हम मैसेज के फॉर्म में, टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में चैटिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जैसे कि व्हाट्सएप पर, गूगल टॉक पर, स्काइपे पर, तो ये सारी जो चैटिंग मैसेंजर्स हैं, इनको हम इंटरनेट के हेल्प से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस. सो चैटिंग इज ऑलवेज डन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज. चैटिंग जो हम परफॉर्म करते हैं वो हम टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में करते हैं. एंड वन कैन चैट थ्रू एन इंस्टेंट मैसेंजर. इसके लिए हमें एक इंस्टेंट मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज अ चैट रूम और ए वेबसाइट. ओके, तो पॉपुलर जो इंस्टेंट मैसेंजर्स हैं, दैट इज द गूगल टॉक, स्काइपे, एक्सेट्रा. नाउ अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा बात करें, तो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट वन कैन चैट ऑल्सो विद ओवर वॉइस चैट. जैसे आजकल वॉइस कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है व्हाट्सएप पर, तो वन कैन चैट थ्रू वॉइस चैट. इन दिस टाइप ऑफ चैट 2 or more users can chat through audio or video transmission, as you see in the photo, in the picture. One can chat in the form of audio or video transmission. Next is the video conferencing. All of you are aware about video conferencing. You do daily video conferencing on, किस पे करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दैट इज डन विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट इज ऑन Zoom. So video conferencing is a visual communication session between 2 or more users, regardless of their location. लोकेशन इसमें कोई भी
पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती है, कोई भी मैटर नहीं करती है लोकेशन, बिकॉज जो पर्सन है वो कहीं पे भी हो सकता है और ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट के थ्रू रियल टाइम में हम किसी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फॉर इफेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, business companies or organizations need to set up a profiling conferencing software and hardware solutions for rooms, PCs, mobile devices and browsers. तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है पीसी की, मोबाइल डिवाइस की या फिर इंटरनेट की, ब्राउजर्स की और पेरिफेरल्स जैसे कि माइक्रोफोन, वेबकैम, स्पीकर फोन, हेडसेट और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. So video processing, content transmission and integrations. It means that infrastructure of hardware and software. इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए और हार्डवेयर भी होना चाहिए. हार्डवेयर, webcam, microphone, speaker phone, headset, etc. These are hardware, and software are the just as the Zoom app you are using daily for doing online classes. Next is the advantages of video conferencing. So the advantages of video conferencing saves time and money. सबसे पहले ये टाइम और मनी को सेव करता है. नो ट्रेवलिंग रिक्वायर्ड, ट्रेवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती हमें. ब्रिंग रिमोट वर्कर्स एंड टेलीकम्यूटर्स टुगेदर. जितने भी हमारे टेलीकम्यूटर्स हैं और रिमोट वर्कर्स हैं उनको हम ऑनलाइन ही इंटरेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो पीपल दूर भी बैठे हुए हैं उनसे भी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इससे मोर पर्सनल एंड इंगेजिंग देन फोन कॉन्फ्रेंसिंग अलोन. मीन्स अगर हम केवल वॉइस चैट करते हैं तो उससे उतनी पर्सनल और इंगेजिंग नहीं हो पाता इंटरेक्शन जितना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो पाता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम फिजिकली एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं, मीन्स हम उसे एक दूसरे को देख सकते हैं. इंक्रीज्ड इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हम इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. कट डाउन ऑन कार्बन इमिशंस, जब ट्रैफिक कम होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम ट्रैवलिंग को कम करेंगे तो हमारा कार्बन इमिशंस भी कम हो जाएंगे. और इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम फिजिकली तो नहीं लेकिन वर्चुअली एक दूसरे को सामने देख सकते हैं, तो इससे हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत इंप्रूव होंगे. नेक्स्ट इज द ई लर्निंग. सो ई लर्निंग इज वेरी कॉमन टॉपिक. आजकल हम ई लर्निंग ही कर रहे हैं, जो हम घर बैठे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज थ्रू द ई लर्निंग. सो ई लर्निंग is a system based on formalized teaching but with the help of electronic resources is known as e-learning. हम e-learning ही कर रहे हैं Zoom ऐप से, लेकिन हम फिजिकली क्लास में प्रेजेंट ना रहते हुए हम टीचिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के थ्रू कर रहे हैं. मींस बीच में हमारे इंटरनेट है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, दैट इज योर पीसी और योर लैपटॉप. सो e-learning can also be termed as a network-enabled transfer of skill and knowledge, and the delivery of education is made to a large number of recipients at the same or different times. So, जितना भी स्किल और नॉलेज है वो नेटवर्क इनेबल्ड है और जो डिलीवरी है एजुकेशन की वो एक लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स के पास पहुंचती है डिफरेंट टाइम के हिसाब से. यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ई लर्निंग के थ्रू अपने टीचर से कांटेक्ट करते हैं, मीटिंग सेट करते हैं और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन और स्किल गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग. So first you see the advantages. You all are able to link the various resources in several varying formats. जैसे कि हम देखते हैं कि हम स्क्रीन शेयर करके भी पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट वीडियो, टीचर का वीडियो भी देख सकते हैं, मींस उसकी वॉइस और उसका वीडियो भी देख सकते हैं.
बहुत ही इफेक्टिव वे ऑफ डिलीवरिंग कोर्सेज ऑनलाइन है. मीन्स यू आर वेरी कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबल विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज. आप कभी भी कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं. Everyone who are part-time students or working full-time can take advantages of web-based learning. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट टाइम एजुकेशन एक्सेस करते हैं, वो भी वेब बेस्ड लर्निंग के थ्रू इसका एडवांटेज ले सकते हैं. एंड वेब बेस्ड लर्निंग प्रमोट्स एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग. कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है, तो कभी भी जब आप एक्टिव हो और इंडिपेंडेंट हो तो आप इंटरनेट के थ्रू ई लर्निंग कर सकते हैं. एज यू हैव एक्सेस टू नेट 24/7, you can train yourself anytime and from anywhere also. So e-learning has an advantage of 24/7. You can train yourself anytime and from anywhere. Now the disadvantages of e-learning. Most of the online assessments are limited to questions and they are only objective in nature. होता क्या है कि जो ई लर्निंग है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी की. पहली चीज तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. ऑनलाइन असेसमेंट्स ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं. हम ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस में. और दूसरी चीज सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है. मीन्स कोई वायरस ना आ जाए, नेटवर्क हैक ना हो जाए, या फिर कोई ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए. अदरवाइज दूसरी चीज, जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे लैब में, वो हम ऑनलाइन क्लासेस में परफॉर्म नहीं कर सकते. द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वर्क इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. इट मीन्स जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, एनीवन कैन डू अ प्रोजेक्ट रादर देन द एक्चुअल स्टूडेंट्स इटसेल्फ. क्योंकि जो हमने वर्क किया ऑनलाइन, अब हम ये नहीं देख सकते कि स्टूडेंट ने वो वर्क खुद से किया है, क्योंकि लैब इज नॉट प्रोवाइडेड ऑनलाइन. सो स्टूडेंट्स की ऑथेंटिसिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है. इट मींस जो वर्क है वो स्टूडेंट खुद कर रहा है या फिर किसी से करवा रहा है. इट इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड इन लास्ट, द असेसमेंट्स डेवलपिंग अ रियली इफेक्टिव e-learning course takes time, money and a great amount of expertise. इसके लिए एक तो बहुत ज्यादा मनी की जरूरत है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगता है. दूसरा, सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन की भी जरूरत होती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए. So the assessments that are computer marked generally have a tendency of being only knowledge based and not necessarily practically based. तो प्रैक्टिकलिटी वो कम हो पाती है ऑनलाइन क्लासेस में, और नॉलेज तो हमें मिल जाता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल्स पर थोड़ा सा कम फोकस कर पाते हैं इन द ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस. नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग. सो ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग. आजकल हम सारी चीजें वर्चुअली शॉपिंग कर रहे हैं. मींस इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के थ्रू हम शॉपिंग कर रहे हैं. सो ई शॉपिंग इज एन इंटरनेट सर्विस वेयर पीपल बाय गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि जो हम इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करते हैं, जो कि हम सर्विस लेते हैं इंटरनेट की, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ई शॉपिंग. तो एडवांटेजेस क्या हैं ई शॉपिंग के? आज अगर हम देखें तो ग्लोबली, मींस पूरे वर्ल्ड में ई शॉपिंग ने अपने पैर बहुत तेजी से फैलाए हैं, और उसका जो एरिया है वो स्प्रेड हो गया है पहले से. तो कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, इसके अगर हम रीजंस देखते हैं तो नो प्रेशर शॉपिंग. कोई प्रेशर नहीं है शॉपिंग का कि दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम. ये टाइम भी सेव करता है. हम कंपैरिजन, मींस हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि हमारी डिलीवरी कितने देर में होगी, कब होगी, ये हम ट्रैक कर सकते हैं.
ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स मनी, यानी बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे, तो हम अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं. नाउ द डिसएडवांटेजेस, डिले इन डिलीवरी. डिलीवरी में डिले हो जाना, दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज. लैक ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स इन ऑनलाइन शॉप. कई बार डिस्काउंट्स नहीं होते हैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर. लैक ऑफ टच एंड फील ऑफ मर्केंडाइज इन ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि लैक ऑफ टच एंड फील, हम प्रोडक्ट को टच करके या फील करके नहीं देख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में. लैक ऑफ इंटरैक्टिविटी इन ऑनलाइन शॉपिंग, हम जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है या जो सेलर है, हम उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते. एंड लैक ऑफ क्लोज एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन शॉपिंग, मीन्स अगर हम कोई शूज खरीद रहे हैं या क्लॉथ खरीद रहे हैं तो फिर हम उसे पहन के नहीं देख सकते ऑनलाइन शॉपिंग में. और फ्रॉड्स इन ऑनलाइन शॉपिंग. लास्ट टॉपिक इज द फ्रॉड इन ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं. ओके, हम पेमेंट करते हैं बैंक्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, तो फ्रॉड होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इज द ई बैंकिंग एंड ई रिजर्वेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ऑनलाइन बैंकिंग, all of you do online banking. So with the help of PIN, सबके पास ई बैंकिंग होती है आजकल. तो हमारे पास अगर एटीएम है तो हम ई बैंकिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं. ई बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल बैंकिंग. इसे हम वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं. तो ऑनलाइन बैंकिंग एंड वर्चुअल बैंकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ एटीएम. You can withdraw your money, you can check your account balance, you can issue a check or take credit card, debit card या open an account, or many banking services you can avail through e-banking. So electronic banking is simple the use of electronic means. यहाँ पर हम simply एक लैपटॉप या अपने मोबाइल के थ्रू भी ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट इज द ई रिजर्वेशन, दैट इज द ऑनलाइन बुकिंग. सो ई रिजर्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बुकिंग एंड ई बुकिंग. आजकल जहीं भी जाना हो तो जितने भी टिकट्स हैं वो हम ऑनलाइन देखते हैं, और हम चाहे बस की टिकट हो, चाहे ट्रेन की टिकट हो, इवन एयरलाइंस की टिकट भी हम ऑनलाइन बुक करा सकते हैं. और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं ऑनलाइन टिकट बुक कराने के जो वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे IRCTC, redbus.in और ibibo.com. ये सारी जो वेबसाइट्स हैं इनके थ्रू हम ई रिजर्वेशन भी करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच वी डिस्कस्ड in this chapter 11. So students, learn the chapter, read the chapter carefully, and questions can also be asked from in between the chapter. Chapters के बीच से भी questions आ सकते हैं, और you have to read chapter carefully. और जो home assignment है, you can also do home assignment in your classwork copy. And you have to show your home assignment, okay, during online classes. इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको WhatsApp के थ्रू डिलीवर की जाएंगी आगे. और इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, you can ask me anytime on my WhatsApp number. So thanks for watching and have a nice day. Thanks.